Assalamu alaikum. I'm Mirza Zohaib Beg, and you are watching the channel name is the Zohaib channel. So today I'm going to explain the next topic of communication. So the topic name is the resting membrane potential. The question is, what is the membrane potential? जब हम potential की बात करते हैं तो potential mean the capacity to do work. किसी भी काम करने की सलाहियत को हम potential बोलते हैं. But when we discuss about the membrane potential, it means the electrical potential to do work. Electrical potential to do work. This is called as the membrane potential. The membrane. There are the two types of membrane potential. The first one is a resting membrane potential. The second one is called as the action membrane potential. The first kind of membrane potential is called as a resting membrane potential that I am going to explain. So what do you know about this kind of resting membrane potential? जब हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में होती है तो या कोई भी स्टिमुलस प्रॉपर्ली रिसीव नहीं कर पा रही होती तो देन क्या होता है कि उस दौरान रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली हम बोलते हैं द नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस the net difference of charges that mean the positive charges that are present outside and the negative charges present in the inside or there's a multiple kind of different charges like the sodium charges, sodium ions, potassium ions, chloride ions. So the net difference of charges across membrane across a membrane you can say that in the non-conductive neuron जो है उसके मेम्ब्रेन के आर पार जो भी नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस होता है उसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं ये वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जिसमें प्रॉपर पोलराइजेशन डेवलप होती है बाय पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूरॉन की आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीजन जो है वो और जबकि इनर जो एनवायरनमेंट है इनर एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की रीजंस क्या है कौन से फैक्टर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंट्रोल करते हैं इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये एक न्यूरॉन स्ट्रक्चर को देखा गया और इसको वोल्ट मीटर लगा के जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखा गया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है तो इट ऑलवेज शोज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द -70 मिलीवोल्ट्स -70 मिलीवोल्ट दैट इज इक्वल टू द -0.0507 volts. So this is a -70 millivolt you can say that membrane potential. So you can see here the outer region of the plasma membrane or the neuron is the positively charged while the inner region is the highly negatively charged. So just like that in the next neuron you can see what kind of charges are present in the high concentration in the outer environment. So you can observe the sodium ions are high in the number in the outer region, but potassium ions are lesser in their number. So what do you say about resting membrane potential? And जैसे मैंने बताया कि net difference of charges है across a plasma membrane the non-conductive neuron और इसमें positive और negative charge जो है वो permeability रखते हैं लेकिन ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है जो कि -70 मिली वोल्ट है इसका यूनिट जो है -70 मिली वोल्ट है इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दी है इसी तरह ना सिर्फ पोटेशियम आयंस अंदर होते हैं बल्कि क्लोराइड आयंस भी अंदर होते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आखिर वो कौन सी रीजन है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनर रीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज और तो जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन सोडियम आयंस दे आर मोर कंसंट्रेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन potassium and chloride ions and negative proteins they are highly concentrated in the inner environment. Sodium and potassium constantly diffuse through the ion channels in the plasma membrane. Larger chloride ions and huge negative proteins cannot cross this plasma membrane. So you can see here in this plasma membrane through this plasma membrane these are the sodium potassium gates because of which potassium ions move through this from the inner region to the outer region. These are the specialized channels through which the sodium ions move in the inner environment. But you can see here, these are the three sodium ions. The three sodium ions move outside the environment from the inner environment of the cell, and two potassium ions in reverse of these two potassium ions move inside the neuron from the outer environment. ये ऐसा कैसे होता है ऐसे क्यों होता है ये अभी हम देखते हैं अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आपको ये सोडियम पोटेशियम पंप नजर आएंगे कि जिसके थ्रू जो है सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम जो है वो अंदर मूव करता है ये पंप का क्या रोल होता है इसमें एनर्जी यूज होती है नहीं होती ये भी मैं अब आपको बताता हूँ और इसके अलावा ये देखिए सो दीज आर द ओपन चैनल्स these are the open channels or you can say that these are gates that involve the movement of the ions the movement of the sodium and potassium ions what do you know about sodium and potassium ATPase pump ये पंप क्या करता है
देखिए ये एक ऐसा पंप होता है जैसे कि मैंने बताया कि जिसके थ्रू जो है सोडियम आयन जो है वो इनर एनवायरनमेंट से आउटर एनवायरनमेंट जा रहे होते हैं, और जब वो आउटर एनवायरनमेट जा रहे होते हैं तो पोटेशियम आयन जो है इन रिवर्स टू दिस जो है 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, जो है 3 सोडियम आयन्स बाहर जाते हैं। इसका मतलब कि ज़्यादातर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो बाहर मूव करते हैं, तो दैट्स व्हाई कि बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर 2 पे हम यूँ कहते हैं कि जो सोडियम आयन्स है, सोडियम आयन्स जो है दे आर 10 टाइम्स ग्रेटर इन देयर आउटर एनवायरनमेंट, यानी वो आउटर एनवायरनमेंट में वो 10 गुना जो है वो ज़्यादा होते हैं, जबकि जो पोटेशियम आयन्स हैं वो 20 टाइम्स ग्रेटर होता है इनर एनवायरनमेंट में, यानी आपस में कंपैरेटिवली, यानी आउटर एनवायरनमेंट में सोडियम आयन 10 गुना ज़्यादा है देन द इनर सोडियम आयन्स, जबकि पोटेशियम आयन जो है वो 20 गुना ज़्यादा इन द इनर एनवायरनमेंट एज़ कंपेयर्ड टू द आउटर पोटेशियम आयन्स। बट इसके बावजूद भी सोडियम बाहर ज़्यादा होने की वजह से सोडियम आयन्स की वजह से न्यूरॉन के ऊपर जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है पोटेशियम के कम होने की वजह से, या यूँ कह लें कि क्लोराइड आयन्स की वजह से। नंबर 2, ऐसा क्यों होता है? इसकी रीज़न मैं बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ तरह के क्लोराइड आयन्स हैं, वो क्लोराइड आयन्स जो है वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो क्लोराइड आयन्स जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्लोराइड आयन्स हैं, ये भी इसके थ्रू मूव करते हैं, जबकि सोडियम आयन्स भी जो है वो इन चैनल्स के थ्रू जो है उनकी मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है। वो मूव करते हैं इनर एनवायरनमेंट से आउटर एनवायरनमेंट, लेकिन इसके बावजूद भी जो क्लोराइड आयन्स हैं वो इनर एनवायरनमेंट ज़्यादा हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन ज़्यादा है अंदर अंदर वाली साइड पे, और नंबर 3, पोटेशियम आयन्स जो है वो अंदर कम है। ये 3 चीज़ें हैं, पोटेशियम आयन्स एज़ कम्पेयर्ड टू आउटर सोडियम आयन जो है, उसकी निस्बत जो है पोटेशियम आयन कम है। तो जब ये 3 चीज़ें, ये 3 फैक्टर्स मिल के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं, जबकि ज़्यादा बाहर पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोडियम आयन्स के ज़्यादा होने से है। तीसरा पॉइंट ये है कि परमिबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन जो है वो इस मेम्ब्रेन में से आसानी से पास कर जाते हैं। वो जो है वो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू, कैरियर चैनल्स के थ्रू, यानी पंप ना भी होगा तो तब भी मूव करेगा। ये पंप जो है बेसिकली हम ये कहते हैं कि सोडियम आयन, 3 सोडियम आयन इनर एनवायरनमेंट से जब आउटर एनवायरनमेंट में जाएँगे, और 2 पोटेशियम आयन आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट देखे जाएँगे, तो देखिए दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज़ अक्रॉस is the against the concentration gradient. That means the movement of sodium molecules from the lower concentration to higher concentration, and the movement of potassium ion from the lower concentration to higher concentration. This is called as active transport. ये active transport होती है। इसके अलावा sorry, this is called as active transport through with the help of ATP energy. तो इसके नतीजे में क्या होता है कि अंदर जो है वो नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। सो दिस इज टोटली अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम देखते हैं कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए ज़रूरी है कि जो है वो चार्जेस रिवर्स हो, मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर पॉजिटिविटी अंदर डेवलप हो और बाहर नेगेटिविटी डेवलप हो। दैट मीन जो पोलराइजेशन स्टेट थी वो डीपोलराइज होगी ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन एक्शन की फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें इस डीपोलराइजेशन डेवलप करने के लिए बॉडी को एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस? द मिनिमम स्टिमुलस दैट इनिशिएट द इम्पल्स। जो इम्पल्स को इनिशिएट करता है उसे हम बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि डीपोलराइजेशन हो जाएगी, यानी ये रिवर्स होगा। वहां पर सोडियम पोटेशियम गेट्स यूज हो रहे थे, यहाँ सोडियम पोटेशियम सॉरी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप यूज होता है कि जिसमें एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होती है, लेकिन यहाँ पर सोडियम पोटेशियम गेट्स इस्तेमाल होता है कि जो जिसमें डिफ्यूजन के थ्रू यानी हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो डीपोलराइजेशन डेवलप होती है। डीपोलराइजेशन क्या होता है कि व्हेन स्टिमुलस अप्लाइड, परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस इंक्रीजेस, यानी वो सोडियम आयंस परमिबिलिटी बढ़ जाती है, सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है वो अंदर आते हैं। जब पॉजिटिवली चार्ज अंदर आते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पे जो -70 मिलीवोल्ट की फॉर्म में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो -70 बजाय +50 मिलीवोल्ट जनरेट हो जाएगा। डीपोलराइजेशन टू सर्टेन लेवल जो है मतलब सारी की सारी न्यूरॉन के ऊपर जो है वो डीपोलराइजेशन नहीं होती, सिर्फ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डीपोलराइजेशन देखने को मिलती है, कंप्लीट डीपोलराइजेशन नहीं है। डीपोलराइजेशन टू सर्टेन लेवल इसी तरह इसमें होता यूँ है कि सोडियम जो है सोडियम चैनल्स जो है जल्दी से ओपन होते हैं। जब सोडियम आयंस ओपन होते हैं, चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम आयंस अंदर की तरफ इन्फ्लक्स करते हैं। सोडियम गेट्स क्लोज हो जाते हैं, देन उसके बाद जो है वो
देन जो है वोल्टेज पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं, जिसके नतीजे में पोटेशियम गेट्स के थ्रू पोटेशियम आयंस बाहर मूव कर जाते हैं। देखिए जो जिस रीजन में स्टिमुलस पहुंचता है वहां पर चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन हो जाती है। जब डीपोलराइजेशन हो जाती है तो इसका मतलब है कि अंदर सोडियम आयंस अंदर आ रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज अंदर डेवलप हो रहा था और बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। लेकिन जब ये सोडियम जब स्टिमुलस इस पॉइंट से आगे मूव करेगी, नेक्स्ट पार्ट में मूव करेगी न्यूरॉन के, तो इस पार्ट पे क्या होगा कि सोडियम गेट्स बंद हो जाएंगे और उसकी जगह पोटेशियम गेट्स खुल जाएंगे। पोटेशियम गेट खुलेंगे तो अंदर से, चूंकि अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा है, तो अंदर से पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम आयन जो है वो बाहर जाना शुरू कर देंगे। जब वो बाहर जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो है वो आप कह सकते हैं कि इसके नतीजे में पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो देन अगेन जो है वो बाहर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये आता है डीपोलराइजेशन प्रोसेस। इसी तरह जब ऐसा होता है कि जब पोटेशियम आयन जो है वो बाहर जाते हैं, तो वो रीजन जहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो चुका था एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से, वो दोबारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पॉजिटिविटी का डेवलप होना, दिस इज कॉल्ड एज अ रीपोलराइजेशन। प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बेसिकली एक ट्रिगरिंग ऑफ स्टिमुलस मिलता है, मुसलसल जब बार बार जो है स्टिमुलस मिलता है तो उसके नतीजे में एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो है वो ट्रेवल करती है अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, और उसे हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। हाइपर पोलराइजेशन समटाइम ऐसा होता है कि ये ज्यादा जो है बिल्डिंग ऑफ मोर नेगेटिव देन -70 मिलीवोल्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड बेसिकली वो कंप्लीट पीरियड है, वो कंप्लीट पीरियड है कि जब एक मेम्ब्रेन जो है वो हाइपर पोलराइज होती है, यानी वो पोलराइजेशन उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस। यानी वो पोटेशियम आयंस जो अंदर से बाहर जा रहे हैं, उन पोटेशियम आयंस के अंदर से बाहर जाने से क्या होगा कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर चला जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बाहर हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये जो है ये हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड है। ऑल और नन लॉ क्या होता है? व्हाट डू यू नो अबाउट ऑल और नन लॉ? ऑन ऑल और नन लॉ जो है ये बेसिकली हम कहते हैं कि जब एक थ्रेशोल्ड मिलता है और एक्शन मेमोरी पोटेंशियल स्टार्ट होता है, तो ये स्टिमुलस जो है वो बार बार मिलने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इसकी शिद्दत बढ़ जाती है एक्शन मेमोरी पोटेंशियल की। और इसके नतीजे में जब ये शिद्दत बढ़ती है तो न्यूरॉन का वो पार्ट जिसे एक्सोन बोलते हैं, वो क्या करता है कि वो एक फायर लगाता है, वो एक आप कह लें कि इम्पल्स जनरेट करता है। और इस इम्पल्स के दौरान या तो सारे के सारे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बॉडी के अंदर जो है मैसेज प्रॉपरली पहुंचेगा, और या जो है वो मैसेज नहीं पहुंचेगा, जिसे हम ऑल और नन लॉ बोलते हैं। सो दिस इज टोटली अबाउट द एक्शन एंड रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल। अगर हमने इस जो है वो ग्राफ अंदर देखें तो हमारे पास एक तरफ मेमोरी पोटेंशियल है, दूसरी तरफ टाइम इन मिली सेकेंड लिया गया है। और ये सबसे पहले -70 मिली वोल्ट जो कि रेस्टिंग स्टेट है, रेस्टिंग स्टेट में हमें यहाँ पर पोलराइजेशन मिली थी, यानी बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था। सडनली क्या हुआ कि जो है थ्रेशोल्ड मिला, एक स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस की वजह से जो मीडिया है वो डीपोलराइज हो गया। जब डीपोलराइज हुआ तो अंदर नेगेटिव हो गई, जो थे सॉरी अंदर जो नेगेटिव थे वो बाहर चले गए, और जो बाहर पॉजिटिव थे वो अंदर आ गए, जिसके नतीजे में चार्जेस जो है वो रिवर्स हो गए। जब यहाँ पर पहुंचा तो ये पॉइंट जो है ये पीक थी डीपोलराइजेशन की। लेकिन फिर क्या होता है कि जब पोटेशियम गेट्स खुलते हैं, दैट मीन जब पोटेशियम गेट्स खुलते हैं तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाते हैं। जब पोटेशियम बाहर मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो डीपोलराइजेशन है दोबारा से रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है। और जब ये ज्यादा आयंस लूज हो जाते हैं, और इन ज्यादा आयंस के लूज होने से ये डीप टू द नॉर्मल लेवल मूव कर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपरपोलराइजेशन। तो ये बेटा आज का टॉपिक था। आई होप आपको रेस्टिंग और एक्शन मेमोरी पोटेंशियल जो है वो दोनों क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।